Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the topics are George Floyd's brother urged the US Congress to pass reforms on police brutality and stop the pain. Emergency COVID-19 measures prevented more than 500 million infections, study finds. How did some countries become coronavirus free? Financial updates and much more. Let's begin with news in brief. More than 7.3 million cases of the novel coronavirus have been confirmed worldwide, including at least 413,000 deaths. Nearly 2 million cases have been reported in the United States, with more than 112,000 of those fatal. The outbreak is continuing to spread, with cases rising in 21 states as governments ease restrictions and Americans try to return to their routines. Despite improvements in the states they were initially hit hard, such as New York, new hotspots have emerged in others, including Arizona, where an increase in cases and hospitalizations has alarmed local officials. India's financial capital Mumbai has recorded 51,000 cases of COVID-19, taking it past the peak in Wuhan, where the virus first emerged. The news comes amid a surge of infections in India, which has 276,000 confirmed cases. Maharashtra state, of which Mumbai is the capital, has 90,000 of them. Infections are also spiking in the capital Delhi, where authorities have said they expect to see more than 500,000 cases by the end of July. The surge coincides with India's decision to relax restrictions after 3 months of a stringent lockdown that was intended to curb the spread of the virus. Saudi Arabia now has the highest number of coronavirus cases in the Gulf region despite adopting one of the strongest lockdown measures in the Middle East. United becomes first major US airline to require passengers to self-certify their health. The airline is the first to require all passengers to complete a health questionnaire to screen for coronavirus as part of checking in. New TV shows will be coming soon, as Los Angeles will allow many sectors, including film and entertainment production, to resume Friday. Major League Soccer in the US will resume in July. The Federal Reserve says unemployment will remain high as it leaves interest rates near zero. Fed predicts slow recovery, unemployment at 9.3% by the end of 2020. Johnson & Johnson will begin early trial of COVID-19 vaccine candidate earlier than planned. The trial will evaluate patients' response to the vaccination. जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ ने ग्लोबल प्रोटेस्ट स्पार्क कर दिए थे। कल उनका फ्यूनरल हुआ और आज उनके भाई पहुंचे यूएस कांग्रेस के आगे टेस्टिफाई करने। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स पास किए जाने चाहिए पुलिस ब्रुटैलिटी के ऊपर एंड स्टॉप द पेन। जॉर्ज फ्लॉयड के ब्रदर एक हियरिंग में थे और उन्होंने कहा कि उनके भाई जो हैं ही शुड नॉट बिकम अनदर नेम ऑन द लिस्ट। उन्होंने कहा, कांग्रेस से अपील करते हुए कहा, बी द लीडर्स दैट दिस कंट्री, दिस वर्ल्ड। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान प्रोटेस्ट और पुलिस ब्रुटैलिटी के इश्यूज को टैकल करने के फाइनल एडिट्स पर पहुंच रहे हैं और पब्लिक को आने वाले दिनों में वो बता दिए जाएंगे। तो अभी दे आर इन द ड्राफ्ट स्टेज। फाइनल एडिट्स के बाद इन कमिंग डेज दे विल बी मेड पब्लिक। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जुडिशरी कमेटी में आज हियरिंग हुई और लॉ मेकर जो हैं वहां पर सुन रहे हैं टेस्टिमनी सिविल राइट एक्टिविस्ट, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर से। और कमेटी जो है वो प्लान कर रही है कि ए डेमोक्रेटिक लेड जो हाउस है उसके फ्लोर पर बिल भेजा जाए बाय 4 जुलाई और ये बिल है ऑन कॉम्बैटिंग पुलिस वायलेंस एंड रेशियल इनजस्टिस। अब पूरे यूएस में और इंटरनेशनली ये डिबेट हो गई है कि पुलिस प्रैक्टिसेस और अकाउंटेबिलिटी को किस तरह से सुधारना चाहिए, रेशियल इक्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। और जॉर्ज फ्लॉयड के ब्रदर ने यही कहा है कि आई एम हियर टू आस्क यू टू मेक इट स्टॉप द पेन। और उन्होंने बहुत इमोशनल अपील में कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की जो कॉल फॉर हेल्प है वो इग्नोर हो गई थी
और उन्होंने अपने फैमिली के बारे में कहा कि कितने वो दुखी हैं, और उन्होंने कहा कि जो लोग सड़कों पर आ गए हैं, स्ट्रीट्स में मार्च कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं इनफ इज इनफ। उन्होंने कहा इस तरह से, जिस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड का ट्रीटमेंट हुआ है, किसी एनिमल का भी नहीं होना चाहिए, किसी ह्यूमन बीइंग का नहीं होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड सिर्फ एक टी शर्ट पर पिक्चर बनकर ना रह जाएं। इतनी जो मूवमेंट एस्केलेट हुई है, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। डेमोक्रेटिक कमेटी चेयरमैन जेरेड नेडलर ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि जॉर्ज फ्लॉयड सिर्फ एक कॉज नहीं है, एक नाम नहीं है जिनका नाम लिया जाए स्ट्रीट्स पर। ही वॉज अ मैन, ही हैड अ फैमिली, वी मोर्न द लॉस। अब डेमोक्रेट्स ने जो बिल प्रपोज किया है, उसमें पुलिस चोक होल्ड्स को इलीगल कर दिया जाएगा, एंटी रेसिज्म ट्रेनिंग एनफोर्स की जाएगी, और जिन ऑफिसर्स को सैक किया जाता है उनको और जगह स्विच करने से रोका जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक जगह से कंप्लेंट्स हैं ऑफिसर्स की, एक जगह से निकाले गए, तो वो दूसरी जगह जाकर नौकरी कर लेते हैं, तो उनका जो अब्यूजिव बिहेवियर है वो रहता है। अब रिपब्लिकन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव मैट गेज ने ये कहा कि इन एलिमेंट्स को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन कॉर्पोरेशन जो है वो मिलेगी, मगर हमें इकट्ठे मिलकर इन आइडियाज को पहले फाइन ट्यून करना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट के डेस्क पर भेजा जाएगा। व्हाइट हाउस से प्रेस सेक्रेटरी का कहना ये है कि प्रेसिडेंट की प्रपोजल जो इस इशू पर होंगी, उसमें दे वुड नॉट इंक्लूड एनी रिडक्शन इन इम्यूनिटी फॉर पुलिस ऑफिसर। और ये कहा गया द प्रेसिडेंट वुड प्रोएक्टिव पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस वेदर दे मीन लेजिस्लेशन और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये अभी नहीं बताया गया कि क्या करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मगर जिस तरह से कुछ खबरें ट्रिकल कर रही हैं, तो उन्होंने पहले कहा था कि वो ना तो डिसबैंड करना चाहते हैं पुलिस को, ना ही डिफंड करना चाहते हैं। और उनके डेमोक्रेटिक चैलेंजर जो जो बाइडेन है, उन्होंने भी ये अपोज किया है कि डिफंड तो नहीं किया जाएगा, और ज्यादातर लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सुधार लाए जाने चाहिए। अब मिनियापोलिस पुलिस, जहां पर ये सारी घटना हुई, वहां पर जो पुलिस चीफ हैं वो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली वो रिफॉर्म करेंगे, और उन्होंने ये कसम खाई है कि जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ जो है वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा इट विल नॉट गो इन वेन। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म होंगे, इस तरह के होंगे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाए कि पुलिस ऑफिसर्स का कंडक्ट किस तरह का है। अब पहले मिनियापोलिस में सिटी काउंसिल के मेंबर्स ने, मेजॉरिटी ने ये कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट को डिसबैंड कर उसको रिप्लेस किया जाए नए मॉडल से पब्लिक सेफ्टी के। बहुत जगह पर ऐसी बातें हो रही हैं। और कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो व्हाइट हाउस से गए चर्च की तरफ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। तो 1200 फॉर्मर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, उन्होंने ये अपील की है कि एक इंटरनल इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए कि अटॉर्नी जनरल विलियम बार्स का क्या रोल था, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटर्स को वहां से हटाया गया ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जाकर एक फोटो ले सकें चर्च के आगे बाइबल हाथ में उठाए हुए। जिस तरह से फोर्सफुली डिस्पर्स किया गया था वहां पर डेमोन्स्ट्रेटर्स को, उसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए कि अटॉर्नी जनरल विलियम बार का क्या रोल था इसके मतलब। और एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट जो हैं वो बहुत जगह चल रहे हैं, अमेरिका में चल रहे हैं, अमेरिका के बाहर चल रहे हैं, और जो इंपीरियलिस्टिक हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनके स्टैच्यूज उखाड़े जा रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का एक स्टैचू है, वो वर्जीनिया में एक लेक में डंप कर दिया गया। एक बॉस्टन में स्टैचू है, उसको घेर दिया गया। लंदन में भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, स्टैचूज जो हैं वो घेरे जा रहे हैं। वो इसलिए किया जा रहा है कि पुराने टाइम के जो हीरोज जिनको माना जाता था उस वक्त के, वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं स्लेवरी के साथ, तो वो एडवोकेट्स थे फॉर प्रिजर्विंग स्लेवरी। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी इस बारे में उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि his administration will not even consider changing the name of any of the 10 army bases that are named for Confederate Army officers. तो ये बात हो रही थी डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर और आर्मी सेक्रेटरी रायन मकार्थी। उन्होंने इंडिकेट किया था कि वो ओपन है बाय पार्टिजन डिस्कशन पे, क्योंकि जिस तरह के 10 आर्मी बेसिस हैं जो नेम्ड हैं जनरल के नाम पर, उनको रीनेम किया जाए। सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि मिलिट्री बेसिस को जो डिसएसोसिएट किया जाए कन्फेडरेट आर्मी ऑफिसर से, क्योंकि वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये ऑफिसर्स रिप्रेजेंट करते हैं रेसिज्म, डिवाइसिवनेस ऑफ द सिविल वॉर एरा, एंड दे ग्लोरीफाई मेन हु फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। और प्रेसिडेंट ट्रंप
की तरफ से ये आया है बयान कि ये कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट है उनके लिए और ऐसा वो नहीं कहेंगे, इट्स एन एब्सोल्यूट नॉन स्टार्टर। और ये भी कहा गया है व्हाइट हाउस से कि अगर कांग्रेस ऐसा लेजिस्लेशन पास भी कर देगी नाम चेंज करने का तो प्रेसिडेंट ट्रंप साइन नहीं करेंगे। अब यूएस मिलिट्री भी रिसेंटली सोचने लगी है कि ट्रेडिशनल कनेक्शन उनका कन्फेडरेट आर्मी सिंबल्स के साथ है वो नहीं आजकल के माहौल में ठीक रहता। नेवी और मरीन कोर ने अब बैन कर दिया है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ कन्फेडरेट आर्मी बैटल फ्लैग ऑन देयर इंस्टॉलेशन। और जो काफी लोगों की अपील हुई है क्योंकि ये सीनियर जनरल जिनकी पिक्चर हैं वो एडवोकेट्स थे फॉर प्रिजर्विंग स्लेवरी। वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, अलाबामा, टेक्सास, लुइसियाना, यहाँ पर इस तरह के हैं आर्मी ऑफिसर्स के नाम के ऊपर आर्मी बेसिस बने हुए हैं, उनके स्टेच्यूज हैं कई जगह। और ये उनकी नेमिंग हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड इन 1940s और इन सम केसेस एज जेस्चर्स ऑफ कंसिलिएशन टू द साउथ। अब इस डिसीजन पर पॉल ईटन एक रिटायर्ड 2-स्टार आर्मी जनरल हैं और फॉर्मर कमांडिंग जनरल हैं फोर्ट बेनिंग की। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट जो है दे गो अगेंस्ट द आइडियल्स द आर्मी स्टैंड्स फॉर। He said today Donald Trump made it official rather than move this nation further away from institutionalized racism. He believes we should cling to it and its heritage by keeping the names of racist traitors on the gates of our military bases. काफी सोल्जर्स को उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं पता हिस्ट्री के बारे में, मगर जिस तरह का स्टैंड प्रेसिडेंट ट्रंप ले रहे हैं दैट स्पीक्स वॉल्यूम एज टू व्हाट ही स्टैंड्स फॉर। तो इस तरह की बातें जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आ रही हैं जो कि लोगों को और भड़काने का काम कर रही हैं। Emergency COVID-19 measures prevented more than 500 million infections, says a study. एक यूसी बर्कली की ग्लोबल पॉलिसी लैब की टीम ने स्टडी की है। उन्होंने कहा है 6 कंट्रीज में ये स्टडी की गई और चाइना, साउथ कोरिया, इटली, ईरान, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जनवरी से लेकर अप्रैल 6, 2020 के पीरियड में स्टडी की गई और 1717 पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट हुई थी उनको स्टडी किया गया। और इससे स्टडी में ये पता चला है कि 530 मिलियन केसेस एवर्ट हो गए इन 6 कंट्रीज में क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए गए कोविड-19 के दौरान। और ये स्टडी पब्लिश हुई है एक जर्नल नेचर में। तो आज जब लीडर स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस करें इकोनॉमिक कॉस्ट जो है इमरजेंसी हेल्थ मेजर्स के और पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स के, ऐसे में ये स्टडी बता रही है कि कितने ज्यादा केस जो हैं वो टल गए। और इस स्टडी के मुताबिक जो केसेस एवर्ट हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में 60 मिलियन, चाइना में 285 मिलियन, साउथ कोरिया में 38 मिलियन, इटली में 49 मिलियन, ईरान में 54 मिलियन, फ्रांस में 45 मिलियन टोटल केस एवर्ट हो गए हैं। और उन्होंने ये कहा ये तो एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता कि कितनी जानें बच गई हैं क्योंकि इतनी इन्फेक्शंस अगर ज्यादा होती तो फर्टिलिटी रेट्स भी बहुत ज्यादा होते। अब ये स्टडी जो है इसमें एग्जॉस्टिव डेटा कलेक्ट किया गया और इसमें जो टीम मेंबर्स थे काफी कंट्रीज से थे और वो काफी भाषाएं जानते थे। अब चाइना, फ्रांस, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट से ये टीम आई थी। उनके पास कल्चरल नॉलेज थी, लैंग्वेज स्किल थी और इसीलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो हो पाई। और एक और सेपरेट स्टडी आई है इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरफ से। उसने बताया है कि 3.1 मिलियन लाइव्स इन 11 यूरोपियन कंट्रीज वर सेव्ड ड्यू टू शटडाउन, including 500,000 in the United Kingdom and dropped infection rates by an average of 82%. हालांकि ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, दोनों जर्नल नेचर में पब्लिश हुई हैं। तो ये 11 यूरोपियन नेशंस की स्टडी में बात की गई है मगर दोनों की सिमिलर कंक्लूजन है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के शटडाउन्स किए गए हैं उससे काफी फर्क पड़ा है एक्सपोनेंशियल स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस में। अब जब लेट 2019 में वुहान में शुरू हुआ कोरोना वायरस का स्प्रेड और हफ्तों के बीच में पूरे ग्लोब में जो है वो फैल गया, इसका इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा था, डेवास्टेटिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन था, मगर इतना ज्यादा रिस्क था क्योंकि इस रेट से वो बढ़ रहा था कि और किसी इन्फेक्शियस डिजीज में इस तरह की इन्फेक्शन नहीं देखी गई। और शुरुआत में 38% पर डे की एवरेज से इन्फेक्शंस बढ़ रही थी। They were doubling roughly every 2 days in each country. आज जब 7.3 मिलियन केसेस हैं ग्लोबली कोरोना वायरस के, 413,000 have died due to it,
मगर अगर इस तरह की पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं आती तो तादाद बहुत ज्यादा होनी। तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि आप इस तरह का एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर एक छत में क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं तो इस तरह की चीजें हो रही थी और वो छत गिरने लगी हैं, मगर शट डाउन करने से आपने छत गिरने से बचा लिया। दैट रूफ वुड हैव फॉलन ऑन एवरीबडी एंड इट वुड हैव crashed on everybody, and these shutdowns prevented that falling of the roof। तो इस तरह की एनालॉजी देकर उन्होंने समझाया कि बहुत गंभीर होने थे इसके लॉसेस, क्योंकि आज जो है सारे देश देख रहे हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट्स जो कॉस्ट हैं शटडाउन की वो विजिबल हैं। स्टोर्स बंद हो गए हैं, ह्यूज जॉब लॉसेस हैं, एम्प्टी स्ट्रीट्स हैं, फूड लाइंस हैं, मगर ये जो हेल्थ बेनिफिट शटडाउन के हैं ये इनविजिबल हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी और इन्फेक्शंस और डेथ्स हो सकती थी। अब ये बर्कली की स्टडी के मुताबिक उन्होंने 1717 इंटरवेंशंस को स्टडी किया है। इकोनोमेट्रिक का मॉडल कहा गया है इसको। तो इसमें स्टे एट होम ऑर्डर, बिजनेस क्लोजिंग, ट्रैवल बैन और बाकी नॉन फार्मास्यूटिकल इन्वेंशंस को स्टडी किया गया है। और ये कहा गया है कि टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, क्योंकि थोड़े से भी डिले होते हैं अगर शटडाउन इंप्लीमेंट करने में तो उसे ड्रामेटिकली डिफरेंट हेल्थ आउटकम्स आ सकते हैं। इस तरह के सेक्रीफाइसेस करने से उन्होंने कहा कि हम लोग पहुंचे हैं इस मकाम पर, मगर अब ओपन करना एक नया एक्सपेरिमेंट है, रिस्क आगे रहेंगे जिनको बचाया जाना चाहिए। अब इस पॉलिसी में उन्होंने कहा कई जगह तो क्लियर बेनिफिट देखे गए कि होम आइसोलेशन, बिजनेस क्लोजर्स लॉकडाउन के सबसे क्लियरेस्ट बेनिफिट थे। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, बैन्स ऑन गैदरिंग उसके मिक्स रिजल्ट्स थे। कुछ कंट्रीज में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और गैदरिंग पर बैन लगाने में इसके ज्यादा इफेक्ट देखे गए, जैसे ईरान और फ्रांस में, मगर यूनाइटेड स्टेट्स में कम बेनिफिट्स देखे गए। और बाकी जो इंटरवेंशंस की गई हैं उसके कईयों के इमीडिएट बेनिफिट्स थे, कईयों के 3 हफ्ते लग गए इम्पैक्ट देखने में। ये कहा कि जितना अगर डिले हुआ उससे ड्रामेटिक फर्क पड़ा है हेल्थ आउटकम्स पर। अब ये स्टडी जो यूसी बर्कली की है बहुत वैल्यूएबल है और उन्होंने ये मटेरियल सारा जो है डेटा कोड अवेलेबल किया है पब्लिक के लिए, क्योंकि जो कंट्रीज फाइट कर रही हैं इन्फेक्शन और जिस कंट्रीज में अभी शुरुआत ही हो रही है, स्पाइक हो रहे हैं केसेस, वो इससे फायदा उठा सकते हैं कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए ताकि किसी तरह से इन्फेक्शन के रेट को कंट्रोल किया जा सके। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो 1310 पर। यह प्रोग्राम YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सके। अब बहुत सारी बड़ी इकोनॉमीज, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, इंडिया, ब्राजील जो हैं वो जूझ रही हैं कोरोना वायरस के स्प्रेड से। कई जगह तो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता जा रहा है, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है, पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया जाता। मगर ऐसे में कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कोरोना वायरस फ्री हो गई हैं। अब उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई और वो कैसे कोरोना वायरस फ्री हो गई। एक बात तो ये है कि जो बड़ी इकोनॉमीज है उनका साइज बहुत बड़ा है और जहां अभी कोविड फ्री हो गई है कंट्री, ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो पॉपुलेशन उनकी कम है, छोटी कंट्रीज हैं और उनकी लोकेशन कुछ इस तरह की है कि बहुत ज्यादा वहां पर इंटरनेशनल ट्रैफिक नहीं है। अब न्यूजीलैंड ने हाल ही में बताया कि वो कोविड फ्री हो गए हैं, वहां पर कोई एक्टिव कोविड-19 केस नहीं है। जब से फर्स्ट टाइम वहां पर आया था फरवरी 28 को पहला केस था और अब उनके वहां पर कोई केस नहीं है। 7 हफ्ते के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एनफोर्स किया, बिजनेसेस शट थे, सिर्फ एसेंशियल वर्कर्स ही जा रहे थे काम पर। अब ऐसे में इनके जो केसेस 200 केस जब कंफर्म्ड हुए तभी शटडाउन हो गया कंट्री का और इनके सबसे ज्यादा जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे 1504 और 22 डेथ्स रिपोर्ट की गई। और इस कंट्री को काफी प्रेज किया जा रहा है कि कितनी स्ट्रिंजेंट अप्रोच थी इनकी कॉम्बैट करने के लिए कोरोना वायरस को। एंटार्क्टिका जो है वो सिर्फ अकेला कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई केस नहीं है वायरस का और एंटार्क्टिका को महफूज रखने के लिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। वहां की न्यूजीलैंड की एक्टिविटीज होती हैं कुछ उस कॉन्टिनेंट में, उनको कट बैक कर देंगे अपने रिसर्च ट्रिप्स को ताकि वहां इन्फेक्शन जाने के चांसेस जो हैं वो ना रहें, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम्स हैं वो जाकर कुछ रिसर्च करती हैं एंटार्क्टिका में। और एंटार्क्टिका क्योंकि बिल्कुल देखिए इस तरह की उसकी लोकेशन है और इजीली एक्सेसिबल नहीं है, लोग नहीं जाते।
अब न्यूजीलैंड में 5 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है और उनकी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है वो काम आई। उन्होंने कहा कि चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है उनको एलिमिनेट करने पर जोर दिया गया। जो लोग आइसोलेशन में थे उनको बिल्कुल आइसोलेट करके रखा गया कि वो आगे लोगों को इन्फेक्ट ना करें। जो बॉर्डर्स भी जो बंद कर दिए गए ताकि बाहर से लोग जो केसेस ना लेके आए। तो आइसोलेशन, शटडाउन, इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए। इसी वजह से न्यूजीलैंड हो गया है कोविड-19 फ्री। आइसलैंड एक टाइनी आइलैंड है जिसकी 360,000 पॉपुलेशन है यूरोप में। अब रिसेंटली यहाँ पर भी काफी तारीफ हुई कि कंट्रोल कर लिया गया यहाँ पर सिचुएशन और बहुत ज्यादा बड़े लॉकडाउन नहीं लगाने पड़े। अब यूरोप में देखिए जहां पर कितने ज्यादा केसेस हैं, आइसलैंड में कंपैरेटिवली कम थे। वहां पर 1802 केसेस थे विद 10 डेथ्स और मोर्टेलिटी रेट था 0.6% विच इज लोअर देन फ्रांस, इटली, स्वीडन। मगर यहाँ पर इफेक्टिव गवर्नमेंट प्लानिंग, ट्रस्टेड साइंटिफिक एडवाइस, टेस्टिंग ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। इन्होंने तो इतनी ज्यादा प्रोएक्टिविटी दिखाई कि आइसलैंड में कोविड-19 के केसेस डिक्लेयर होने से पहले ही टेस्टिंग शुरू कर दी गई। फरवरी में टेस्टिंग शुरू कर दी गई जब लोगों के कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे और एक प्राइवेट एजेंसी जो है उसके साथ पार्टनरिंग कर कर एक्सटेंसिव टेस्टिंग की गई और आइसलैंड हैज टेस्टेड मोर पीपल पर कैपिटा देन एनीवेयर एल्स। और फिर जिन लोगों को टेस्ट किया गया, ट्रेस कांटेक्ट कर कर पॉजिटिव केसेस को क्वारंटीन करा गया। तो एक्सट्रीम मेजर्स नहीं लिए गए कि बहुत ज्यादा लॉकडाउन सीवियर हो, मगर बहुत जल्दी उन्होंने इस तरह के काम किए कि केस होने से पहले ही टेस्टिंग शुरू कर दी। और बाकी कंट्रीज में देखिए टेस्टिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है। अब यूएस में मेजर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि टेस्टिंग एडिक्वेट नहीं है या बहुत टाइम लगाकर टेस्टिंग हुई। तो आइसलैंड में इसी वजह से अब बिल्कुल कोरोना वायरस फ्री हो गए हैं। दे आर ओपनिंग देयर कंट्री फॉर टूरिस्ट। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कोविड-19 से फ्री हो गई हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर बहुत जल्दी बंद कर दिए थे, तो वहां पर नहीं है कोविड के केसेस। और छोटी छोटी कंट्रीज हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, सोलोमन आइलैंड्स, वानुआतू, समोआ। ये कंट्रीज इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है क्योंकि कुछ आइलैंड्स हैं, किरिबास, माइक्रोनेशिया, टोंगा, मार्शल आइलैंड्स, पलाऊ, तुवालू, नाउरू। तो इन सारी कंट्रीज में अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि एक तो ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक नहीं है और इन्होंने इमीडिएट जो स्टेप्स इस तरह से लिए कि इनके यहाँ पर कोविड-19 से बिल्कुल अब निजात पाली गई है, फ्रीडम है। तो ये हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं और दे आर अ रे ऑफ होप फॉर अदर कंट्रीज कि अगर इस तरह के मेजर्स लें। हालांकि चैलेंजेस बड़ी कंट्रीज के अलग हैं, मगर इन कंट्रीज में अब कोविड-19 के केसेस नहीं है। Time for our financial update. Dow and S&P 500 post back-to-back losses, but Nasdaq closes above 10,000 for the first time. Stocks fall in anticipation of Fed's next move. Experts say what they are expecting. That is what is driving the stock market. The Dow Jones Industrial Average and S&P 500 fell for a second straight day today as traders once again took profits out of names benefiting from the economy reopening and rotating into a mega cap tech stocks. The S&P 500 closed 0.5% lower at 3,190, while the Dow slid 282 to 26,989. The Nasdaq Composite meanwhile jumped 0.7% to 10,020, marking its first ever close above 10,000. Despite today's losses, the Dow and S&P 500 remain more than 45% above their March 23 intraday lows. The price of gold per ounce $1,746. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 67 paisa. The Fed Reserve kept interest rates unchanged today and indicated it does not expect to raise them through 2022. In a statement, the Fed said it expects to maintain this target range until it is confident that the economy has weathered recent events and is on track to achieve its maximum employment and price stability goals. The committee added it will increase its bond holdings by buying $80 billion per month in treasuries and $40 billion per month in mortgage-backed
securities. The Fed also expects the US economy to contract by 6.5% in 2020 before expanding by 5% in 2021. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.